Greek word, the begotten Son. Okay, now we okay we will study about the titles of Jesus. You have told me before. I thought that we haven't covered it. Someone was on that. That's why God has Okay. So we will. Okay, it's okay. We are just repeated it. Okay. The titles of God that are written in the Bible also very clearly, very lucidly says that Jesus is God. और जो नाम जो दिए गए परमेश्वर के या जो अवधे परमेश्वर के दिए गए वो भी साफ तरीके से बताते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है. He is the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है. Always is the Son of God. हमेशा वो परमेश्वर का पुत्र है. People have a misunderstanding. Jesus, God became Son of God, or Jesus became Son of God when He came on this earth. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या कुछ लोगों की समझ ये है, वो सोचते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जो है जब यीशु धरती पर आया तब वो परमेश्वर का पुत्र बना. No, it's not like that. ऐसा नहीं है. Eternally, in the eternal Father, there is a Son. ऐसा नहीं है. जो अनंत काल का परमेश्वर पिता है उसी के अंदर अनंत काल का पुत्र भी था. Always there is a Son in the Father. पिता में वो पुत्र हमेशा था. Let us turn to the book of Proverbs, chapter 30. नीति वचन 30वां अध्याय. नीति वचन 30वां अध्याय. Proverbs. We will read verse 4. 30 ने. Chapter 30, 30. 30 का 4. क्योंकि स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया. कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता. These are the words of Augur, one of the writers of Proverbs. और जो लेखक है नीति वचन का औगर करके उसका ये वचन है. He asks few questions. वो कुछ सवाल पूछ रहा है. Who ascended into heaven? कौन स्वर्ग में चढ़ा? And who descended from heaven? और फिर वहां से कौन उतर आया? Who can gather the wind in his fist? कौन वायु को अपने मुट्ठी में बटोर सकता? And who has bound the waters in a garment? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बंधा? Who has established all the ends of the earth? किसने पृथ्वी के सीमाओं को ठहराया? An ordinary man cannot do all these एक things. साधारण व्यक्ति तो ये नहीं कर सकता. There should be a divine God. एक अलौकिक Then he परमेश्वर. asked this question, और जब ये सवाल पूछा what is his name? उसका नाम क्या है What is his son's name? और उसके पुत्र का नाम क्या है? What is his son's name? You know, the book of Job is the first book that is written, the entire book of the Bible. बाइबल में सबसे पहला लिखी गई किताब अय्यूब की. And in that there is a question, where is that son who is in God? और उसमें एक सवाल है कि वो पुत्र कहाँ है जो परमेश्वर में है? What is his name? उसका नाम क्या है? What is his son's name? उसका बेटे का नाम क्या है? That means always in the eternal Father there is a son. क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए उस परमेश्वर के पिता के अंदर ही पुत्र भी है. And this son is the one who is begotten by the Father. और यही पुत्र को परमेश्वर ने उत्पन्न किया. What's the meaning of begotten? उत्पन्न करने का क्या अर्थ है? John 3:16 says, you know by heart, right? यूहन्ना 3:16 तो सबको मुंह दबानी याद है. For God so loved the world that he sent his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए. So begotten, what is the meaning of begotten? एकलौता या उत्पन्न किया हुआ क्या है? In the Greek language, begotten is monogenes. और यूनानी भाषा में जो बिगॉटन है या एकलौता को मोनोजेनस कहते हैं. MONOGENES. MONOGENES.
monogenes. Nes. लिया Monogenes. मोनोजेनस यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द। It is from that monogenes the word begotten is translated in English. और ये मोनोजेनस जो शब्द है उसी में से वो अनुवाद करके उसको एकलौता या जो है उत्पन्न किया हुआ बताते हैं। Begotten means monogenes. बिगॉटन या फिर उत्पन्न किया हुआ बोलेंगे तो मोनोजेनस, That means one of a kind. मतलब एक प्रकार का, Only one of a kind. सिर्फ एक ही प्रकार का, Unique. एकदम अलग। There are no many begotten sons. बहुत सारे उत्पन्न किए हुए पुत्र नहीं है, There is only one begotten son. लेकिन एकमात्र उत्पन्न Only किया हुआ one पुत्र, unique son. एक ही अलग पुत्र। You know, when we see unique, that means that some importance is there. और जब हम पुत्र को देखते हैं तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। What is that uniqueness Jesus had? यीशु में कौन सी ऐसी अलगपन थे? Jesus had unique relationship with the Father. यीशु का रिश्ता जो था वो बहुत ही अलग था पिता के साथ। It is because that unique relationship, that means no one else never had that relationship. No one else will have that relationship with the Father as the Son had and has, so he is called the begotten Son. और परमेश्वर के संग पुत्र का रिश्ता इतना अलग था, ऐसा रिश्ता जो न किसी के साथ था न होगा, इसीलिए वो एक अलग रिश्ता या फिर उसको बोल सकते हैं कि हम एक मतलब परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किया हुआ। Jesus is the Son of the Father not by adoption but by nature. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो है वो उसको गोद लेने के वजह से नहीं, लेकिन वो स्वभाव से ही है। The Bible says the Holy Spirit overshadowed Mary. He was prepared to come on this earth. वो इस प्रकार से तैयार किया गया धरती पर आने के लिए। Overshadowed, then the power of the Holy Spirit came upon her. A birth has taken place. और साया किया का मतलब क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर उतरा और वो गर्भवती हुई। But eternally in the Father there is a Son. He is unique. He is one of a kind. There is no one else who can be called the Son of God. Because of that, he is called the begotten Son. लेकिन अनंत काल में अगर हम देखें तो एक पुत्र पहले से ही परमेश्वर में था जो एकदम ही अलग था और वो उसका रिश्ता भी बहुत ही अलग था, और इसीलिए वो अलगावपन के वजह से उसको उत्पन्न किया हुआ या फिर एकलौता बोला गया। It's a unique relationship. वो एक बहुत ही अलग रिश्ता है। And because of that, Jesus told, I am the first, I am the last. और इसीलिए यीशु ने कहा मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। When the Father was there, I was there. जो पिता थे तब मैं था। Only Jesus told, I am the first and I am the last. सिर्फ यीशु मात्र ने कहा कि मैं ही आदि और अंत हूँ। And then he told, I am the Alpha and I am the Omega. और यीशु ने ही कहा कि मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। As we got ABCD in English alphabets, 26 alphabets. In Greek, first alphabet is Alpha and the last alphabet is Omega. और जैसे अंग्रेजी में ABCD है तो वैसे ही यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में अल्फा जो है ये पहला अक्षर है और ओमेगा जो है वो आखिरी अक्षर है। Jesus claimed it. यीशु ने उसका घोषणा करी। Did anyone claim that? कोई ऐसा और कोई बोला क्या? Yeah, there may be some false prophets. There could be, but they all came, they died, and they are no more. कोई झूठे भविष्यवक्ता होंगे लेकिन वो आए, मर गए, चले गए। But Jesus is the only one living through the history that every person can say he is Alpha and Omega. लेकिन एकमात्र यीशु ऐसा है पूरे इतिहास में जो शुरुआत से लेके अभी तक है और बोल सकते हैं लोग कि वही अल्फा और वही ओमेगा।
So we call him the Lord. इसीलिए हम उसको प्रभु बोलते हैं। Yes, What is amen. the meaning of Lord? प्रभु का मतलब क्या है? The one who has lordship over us. जो हमारे ऊपर प्रभुता करता है। In English, we write capital letter L and the remaining letters small letters. That is L-O-R-D, Lord. That is the name given for Jesus when he came here. और जब ये इंग्लिश में लिखते हैं लॉर्ड करके या प्रभु करके, तो इंग्लिश में खास करके आपको ये फर्क दिखेगा कि एल जो है L-O-R-D लॉर्ड होता है, तो एल कैपिटल होगा, बड़े में होगा, और O-R-D छोटे में होगा। तो ये जो एल कैपिटल वाला ये लॉर्ड है, ये यीशु मसीह को दिया गया नाम। He is the Lord of all people. वो हर व्यक्ति का प्रभु है And he is the Lord of glory. और वो महिमा का प्रभु है। The Lord of glory came here to redeem us. वो महिमा का प्रभु हमारे बीच आया ताकि हमें छुड़ाए। What a great God he is. कितना महान प्रभु है हमारा। This is a mystery of Trinity. और यही जो है त्रिएकता का रहस्य है। Only God could do it. सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था, No one else could save mankind. कोई भी कोई मनुष्य को बचा नहीं सकता था। But in the fullness of time, God determined to send his son. लेकिन सही समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। And when he was sent, he was called the mighty, the counselor, the almighty God. और जब उसको भेजा गया तो सर्वसमर्थ जो है और जो है सलाहकार बताया गया। He is the Father, वही पिता है, he is the Son, वही पुत्र है, he is the almighty God. वही सर्वसमर्थ परमेश्वर है। These are not the words of any human being. ये कोई मनुष्य की बात नहीं है। Isaiah the seer was filled with the Holy Spirit, and Holy Spirit gave us the inspired word of God. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो है प्रेरित होकर यशायाह नबी ने वो प्रेरित वचन को हम तक पहुंचाया। 2 Timothy 3:17 says all scripture is inspired. दूसरा तीमोथी 3:16 कहती है कि सारे जो वचन है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखे So गए। our scripture which we have in our hand is inspired. और तो वचन जो हमारे हाथ में है वो प्रेरित किया गया हुआ वचन है। Inspired means God breath. प्रेरित मतलब परमेश्वर के द्वारा सांस लिया गया या सांस दिया गया। God gave his ideas in the minds of the angels or the Holy Spirit, and the Holy Spirit put thoughts in the minds of the authors of the word of God. परमेश्वर ने अपने उस ज्ञान को, अपने उस सोच को, अपने उस वचन को जो है भविष्यवक्ताओं को दिया। भविष्यवक्ताओं ने उस वचनों को लेकर वो उस वचन को लिखे। So it is inspired word of God. तो ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया हुआ वचन There is no fault in it. इसमें कोई गलती नहीं है। Of course, there are certain faults that has occurred because of translation. हाँ, कुछ गलतियां आप बाइबल में देख सकते हैं, वो इसलिए हुआ क्योंकि अनुवाद करने वालों ने गलती करी। It is human being who translated it. क्योंकि लिखने वाले जो अनुवाद करने वाले इंसान हैं। And moreover, in all language, all words meanings are not there. और सारे भाषाओं में सारे वचनों का अर्थ नहीं है। Certain Greek word and certain Hebrew words, we do not have that proper word in our Marathi or Malayalam or Tamil or any other language. और जो इब्रानी भाषा है, इब्रानी भाषा का अक्षर का जो अर्थ है या शब्दों का अर्थ है वो ज्यादातर कोई भाषा में नहीं है, जैसा तमिल हो, मराठी हो, मलयालम हो, किसी में भी ऐसे एकदम एग्जैक्ट अर्थ वाला नहीं है। So when translated, they had taken the most apt word in order to suit the context. और जब अनुवाद करने वालों ने उसका अनुवाद किया तो जो एकदम करीबी वचन था उसके, उस वचन को उन्होंने लिखा। And moreover, we have received this Bible today in printed form in paper. और आज हमारे पास ये जो वचन है वो प्रिंट किया हुआ, पेपर में प्रिंट किया हुआ है। Bible was not so in the beginning. शुरुआत में ऐसा नहीं था। The Bible was stored in scrolls. और जो है बाइबल को जो है
ऐसे पूरे लपेट के वो एक स्क्रोल बनाया जाता था। Not one, several scrolls बहुत सारे मतलब ऐसे बनाते थे। in leather scrolls. वो जो है चमड़े के जो है स्क्रोल में लिखे जाते थे। And all the scrolls they wrote and rewritten and rewritten. That was the work of scribes. और जो है हर जो उस वचन में उस चमड़े की पट्टी में लोग लिखते रहे और फिर उसको सुधारते गए, लिखते रहे। वो काम जो है वो जो स्क्राइब्स जो क्या बोलते हैं उसको, स्क्राइब को हिंदी में Scribes, writers. जो लिखने वाले लेखक जो है वो लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं और कुछ लोग उसको लिखते हैं। One group of scribes passed स्क्रिप्ट away. राइटर बोल सकते हैं। Script writers. One group of scribes passed away. Then God prepared another group of scribes who were educated, who were erudite. They knew the language properly. Then, by the help of the Holy Spirit, they had taken new scroll and written from the old one. They rewritten from the old one to the new one. कुछ लेखकों ने जो है पहला लिखा अनुवाद करके, और फिर बाद में परमेश्वर ने दूसरे, वो लोग मर गए तो दूसरा अनुवादक आए, उन्होंने और प्रभु के अनुग्रह से उसी को लेकर फिर दूसरा बनाए, तो ऐसे वो बदलता गया। And while rewriting the scrolls also, some mistake might have occurred. We do not know. और हो सकता है जब वापस उसको अनुवाद करके लिखा गया हो तो उसमें भी कोई गलतियां हो सकती। But the Bible says this is inspired word of God. It's God breathed word of God. लेकिन बाइबल कहती है ये वचन जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेरित करके उसकी जो श्वास है, उसका जो जीवन है, वो इसमें डाला गया। So these titles very clearly says that Jesus Christ is God. और ये सारे जो वायदे हैं, ये सारे जो नाम हैं, वो ये बताते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर The है। title that is written for Yahweh is applied for Jesus Christ. और जो नाम यावे परमेश्वर को दिया गया वही यीशु को भी दिया गया। In Isaiah 7:14, it says there is an Emmanuel is going to be born in connection with Yahweh, but in the book of Matthew, the same name is given to Jesus Christ. और जो है ऐसा में लिखा है, ऐसा में हम पढ़ते हैं कि एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ये परमेश्वर के विषय में बता रहा है, लेकिन वही नाम मत्ती में यीशु को दिया गया। Please turn to Deuteronomy chapter 6. व्यवस्था विवरण 6 अध्याय देखेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, ड्यूटोनॉमी 6 verse 16. 6 का 16। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। Yes. You shall not tempt the Lord your God as you tempted him in Massa. तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना जैसे तुमने मसा में किया था। The Lord your God. अपने प्रभु परमेश्वर, It is said, who is the Lord your God? यहाँ पर क्या दिया गया? अपने परमेश्वर यहोवा की। The Lord your God, that means Jehovah God. और प्रभु परमेश्वर मतलब यहोवा परमेश्वर। Is Jesus Lord our God? क्या यीशु मसीह हमारा प्रभु परमेश्वर है? Where is written? कहाँ लिखा है? Bible में written. ये अच्छी बात है। मैं उसको तैयार करूँ। Okay, let's turn to Matthew chapter 4 verse 7. मत्ती 4:7। मत्ती 4 का 7। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। Jesus told to Satan the same thing. When Satan tempted him, he told Satan, it is written, you should not tempt the Lord your God. और यहाँ पर यीशु की जो परीक्षा ले रहा है, परीक्षा किसका ले रहा है? शैतान। और यीशु क्या बोल रहा है? लिखा है कि तू अपना प्रभु परमेश्वर की। So the Lord your God returned or applied for Yahweh God. Jesus, when he repeated it, he applied to himself. और जो यहोवा परमेश्वर के लिए जो बोला गया था, वही वचन को जब यीशु ने बोला, वो अपने संदर्भ में बोल रहा है।
तो वही नाम है, सेम। Okay, so did you understand? The Lord your God that is applied for Yahweh God is applied for himself by Jesus. और जो शब्द जो परमेश्वर यहोवा के लिए बोला गया था, वही शब्दों को यहाँ पर यीशु अपने लिए बता रहे। Then one more reference, let's see, Psalms 110, और एक संदर्भ देखेंगे, भजन 110 verse 1. पहला वचन, भजन 110 पहला वचन। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। Yes. The Lord said to my Lord. मेरे प्रभु से, No, the Lord said to my Lord. First verse, first verse. यही था। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि मैं तेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरण की चौकी न बनाऊं। Yes. David wrote this psalm. दाऊद ने ये वचन लिखा, And David told, the Lord said to my Lord. मेरे प्रभु ने यहोवा से कहा। Yahweh God told to my Lord Jesus, यानी यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा, sit at my right hand मेरे दाहिने ओर बैठ till I make your enemies your footstool. जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैर की चौकी न बनाऊं। So David called Jesus my Lord. तो दाऊद जो है यीशु को मेरा प्रभु कहता है। Yahweh God told to my Lord is God, but he applied this lordship here because Jesus was on this earth. और यहाँ पर दाऊद कहता है मेरा प्रभु, यीशु को मेरा प्रभु कहता है, और यहाँ पर यहोवा परमेश्वर यीशु का प्रभु है, क्योंकि प्रभु यीशु तब जगत में थे। Yeah. Please read one more verse, chapter 22 of Matthew. मत्ती 22 42 to 45 will read. 42 से 45, 42 to 45। 22 को 42 से 45। Yeah. मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। Yes. Verse 43. How then does David in the Holy Spirit call him Lord? उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? David, not spirit, not human spirit, not in his spirit, in the Holy Spirit, he asked. दाऊद ने आत्मा में, मतलब परमेश्वर की आत्मा में होकर, Saying, the Lord said to my Lord, sit at my right hand. दाऊद जो है पवित्र आत्मा से भरकर ये कहता है कि मेरे प्रभु ने, प्रभु कहता है, तो ये प्रभु क्यों कहा? दाऊद ने उसको, यीशु को प्रभु क्यों कहा? He is Lord because he came on this earth in human form. वो प्रभु है क्योंकि वो इस दुनिया में मनुष्य रूप में आया। The Lord Yahweh became Lord in order to save people from their sins. और यावे परमेश्वर प्रभु बना ताकि वो लोगों को बचा सके। Did you understand? समझ में आ रहा है कि नहीं? Lord means lordship, dominion. He has over us. और प्रभु मतलब प्रभुता करने वाला, जो हमारे पर अधिकार रखता है। And also when we study the word of God, we see all the attributes which are in the Lord Almighty is in Christ Jesus. और जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी स्वभाव परमेश्वर का है, वो सारा स्वभाव यीशु में भी है। John says in him there was life. और योना कहता है उसमें जीवन था। John 1:4, right? योना 1:4। In him, in whom? उसमें जीवन था। वो कौन है? In God there was life. परमेश्वर में। There was life in God. परमेश्वर में जीवन था। But John says in Jesus there was life.
लेकिन जॉन कहता है, यूहन्ना कहता है यीशु में जीवन था। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? I'm the way, I'm the way, I'm the truth, I'm the I'm the truth, life. I'm the life. मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही। What is this life? ये जीवन क्या है? Eternal life. अनंत काल का जीवन। In whom there was life. उसमें जीवन था। In Jesus Christ there was eternal life. यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन। Only a person who has eternal life can extend eternal life or can give eternal life. और जिसमें अनंत काल का जीवन है वही व्यक्ति दूसरों को भी जीवन दे सकता है। And the life you have today is eternal life. और जो जीवन आज आपके पास है वो भी अनंत काल का जीवन है। Whatever Jesus has given you, that is eternal. और जो भी यीशु ने आपको दिया है वो अनंत काल के लिए। What we see in the world, all these things will perish. और जो भी हम दुनिया में देखते हैं ये सब नाश हो जाएगा, टल जाएगा। So what is eternal life? तो अनंत जीवन क्या है? It is gift of God. ये परमेश्वर का वरदान है। Eternal life is the gift of God. और अनंत काल का जीवन जो है परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। And this eternal life is given for you to have it eternally. और ये अनंत काल का जीवन आपको इसलिए दिया है ताकि आप अनंत काल तक उसको रखो। The life God has given you, if that is eternal, you are going to live eternally. अगर जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है, यीशु ने आपको दिया है, वह अनंत काल का है, इसका मतलब आप अनंत काल तक जीवित रहोगे। And then what is the meaning of eternal life? और अनंत काल का जीवन का मतलब क्या है? How long that eternal life will last? और कभी तक यह अनंत काल का जीवन रहेगा? चलते रहेगा। There is no duration. It is millions and trillions and trillions and trillions of years, and then thereafter too, never ceasing, never it will end. और जो है ये अनंत काल का जीवन क्या है? हमेशा हमेशा के लिए, हरबो खरबो है ना, डरबो सब, जितने भी साल हो उतने साल चलता ही रहेगा। Eternal life is the gift of God. अनंत काल का जीवन जो है परमेश्वर का वरदान है। So Jesus just did not come on this earth to save us from our sins. तो यीशु मसीह सिर्फ हमें पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, His plan is so great. लेकिन उसकी योजना बहुत बड़ी है। He wants all people living on this earth to confess their sins unto Jesus and live eternally along with him in eternity. और वो चाहता है कि जितने लोग इस दुनिया में हैं वो अपने पापों का अंगीकार करके उद्धार पाके अनंत काल तक उसके साथ जीवित रहे। That life is in Jesus. और वो अनंत काल का जीवन यीशु में है। So the life you have in the Holy Spirit in you is the life of Jesus Christ. और पवित्र आत्मा में जो जीवन आपके अंदर है वो जीवन अनंत काल का है। That is the life of Jesus Christ. वो यीशु मसीह का जीवन है। What a blessed people we are. कितने आशीषित है। बजाओ बजाओ। Okay. So, number one, the first attribute that God has His life and Jesus has life. तो पहला स्वभाव परमेश्वर में और यीशु में जो है, परमेश्वर में जीवन है, यीशु में भी जीवन है। Number two, the second attribute, He is self-existing. और दूसरा परमेश्वर के विषय में अगर कहें तो वो स्वयंभव है, मतलब हमें खुद ही वो पहले से ही है, उसका कोई शुरुआत नहीं। God has no beginning. परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है। Rest all things have a beginning. बाकी सारी चीजों का एक शुरुआत है। Universe has a beginning. ये कायनात भी, उसका भी एक शुरुआत है। The angels in heaven have a beginning. और जो स्वर्गदूत हैं उनका भी एक शुरुआत है। Only God is without beginning. सिर्फ परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है। So we say He is self-existing one. इसीलिए हम कहते हैं वो खुद ही हमेशा के लिए बना हुआ है, स्वयंभू है। In English there is a word that's called aseity, A-S-E-I-T-Y.
ASEITY. Yeah, anxiety. Only that word is applied for God. God who is without beginning, anxiety. एसआईटी का मतलब है वो परमेश्वर जिसका कोई शुरुआती नहीं। John chapter 5 verse 26 we'll read. यूहन्ना 5 उसका 26 देखेंगे। यूहन्ना 5:26। यूहन्ना 5:26। Mhm. क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। Yes, for the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. जैसे परमेश्वर के पास जीवन है, वैसे ही पिता परमेश्वर ने पुत्र को भी दिया अधिकार कि उसके पास भी जीवन रखे हुए। So the life in the Father is in the Son Jesus, the same life. तो जो जीवन परमेश्वर में है वही जीवन यीशु में भी है। And number 3 तीसरी समानता is unchanging. वो ना बदलने वाला है। Yesterday, today, forever, Jesus is the same. आज, कल और युगानुयुग यीशु मसीह वही है, बदलता नहीं। Everything changes. सब कुछ बदल जाएगा। Man changes, मनुष्य बदल जाता है, earth changes, earth, जो धरती बदलती है, universe change. कायनात बदलता है। Everything we see, we can see or we cannot see, all these things are subject to change. जो हमें दिखता है, जो नहीं दिखता है, वो सब बदल जाएंगे। But Jesus will not change. लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदलेगा। Only God has immutability, unchanging nature. सिर्फ परमेश्वर में वो ना बदलने वाला सामर्थ्य है। And Jesus told of the truth. यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ। That is another attribute of God. और एक परमेश्वर का स्वभाव। Man says one thing today, tomorrow he changes. मनुष्य क्या करता है, आज एक बोलता है, कल दूसरा बोलेगा। Today's truth is tomorrow's untruth. आज का जो सत्य है कल का झूठ था। Tomorrow's untruth will become truth again after tomorrow. और जो है कल का जो झूठ था वो बाद में अच्छा सच बन जाएगा। This is what going on this earth. इस धरती पे यही चल रहा है। But Jesus is the only one who claimed, I am the truth. लेकिन यीशु मसीह मात्र वो व्यक्ति है जिसने कहा मैं ही सत्य हूँ। Jesus Christ is a manifestation of truth. यीशु मसीह जो है वो सत्य का प्रकटीकरण। Jesus Christ is the personification of truth. यीशु मसीह जो है सत्य का व्यक्तित्व है। And Jesus is the only one who claimed, I am the truth. और यीशु मसीह एक व्यक्ति है जिसने घोषणा किया कि मैं सत्य हूँ। What a great God he is. कितना महान परमेश्वर है वो। Everything changes, but God is in change. सब कुछ बदलता है लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। And another attribute of God is love. और दूसरा एक स्वभाव है परमेश्वर का प्रेम। God's love is eternal. परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का है। Apostle Paul says, if we have anything on this earth, if we do not have love, we are nothing. पौलुस कहता है यदि हमारे पास दुनिया में सब कुछ हो और प्रेम न हो। Where it is written? Where it is written? 1 Corinthians 13. पहला कोरिन्थी 13 अध्याय। You must go to home and read it again. घर में जाके फिर एक बार पढ़ना। We have tongue, we have prophecy, we have capability, we have everything. Even we give our life as a sacrifice. Even if we do all these things, we do not have love, we are nothing. हो सकता है हमारे पास अन्य भाषा हो, भविष्यवाणी हो और जो है इतना सब कुछ योग्यता हमारे अंदर हो, अपना जीवन को पूरा जलाने के लिए, प्रभु के लिए जला दे, राख कर दे, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, काय कौन है? I think all believers should every day read 1 Corinthians 13. और मैं विश्वास करता हूँ सारे विश्वासियों को रोज पहला कोरिन्थी 13 अध्याय पढ़ना। Because there is written the importance of love. क्योंकि 13 अध्याय में प्रेम का महत्व लिखा गया। God is love. परमेश्वर प्रेम है। The love which was in the Father manifested through the Son Jesus on this earth. परमेश्वर पिता का प्रेम जो है
पुत्र के द्वारा हमको प्रकट किया गया। And another attribute of the Lord is holiness. और दूसरा एक स्वभाव है पवित्रता। God is holy. परमेश्वर पवित्र है And God told, be holy as I am holy. और परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र हो। This is the condition God laid for us. और यही है शर्त जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। Is it possible to live like Jesus in holiness? क्या यीशु के समान हम पवित्रता में जी सकते हैं? Now, in human body, we have a tendency to commit sin, or we have inclination to do sin. और हमारे शारीरिक भाव में अगर हम देखें तो हम पाप की ओर खींचे जाते हैं और पाप करने में हम जो है थोड़ा सा सक्षम मतलब खींचे चले जाते हैं। But Jesus says we have to be holy like Jesus. लेकिन यीशु कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी। We have to make attempt to live like Jesus. हम यीशु के समान जीने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। Was Jesus holy? क्या यीशु पवित्र था? Yes. Please read Hebrews chapter 7 verse 29. इब्रानियों के 26. पुस्तक 7:29 पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 7:29 Hebrews 7:29 26. 26। Yeah. अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग में से भी ऊंचा किया हुआ हो। We have a high priest. हमारा एक महायाजक है, He is exemplary. वो जो है एकदम उसका जो है एक ये दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं। He is our model to follow. वो हमारे लिए एक जो है एक नमूना है जिसके पीछे हम चल सकते हैं। And his attributes are written here. और उसका जो स्वभाव यहाँ लिखा है, He is holy, वो पवित्र है, harmless, निष्कपट है, undefiled, निर्मल है undefiled to sin, from पाप के लिए, and separate from sinners, और जो है पापियों से अलग, and has become higher than the heavens. और ऐसे होकर वो स्वर्ग से भी ऊंचा हो गया। Our Jesus, our high priest is holy. हमारा महायाजक, हमारा जो यीशु मसीह है वो पवित्र है। And God says you have to be holy like our Jesus. और बाइबल कहती है जैसा यीशु मसीह पवित्र है जैसे हमको भी पवित्र होना है। We must be holy. हमें पवित्र होना है। And if we do commit sin, there is an alternative too. लेकिन यदि हम पाप करते भी हैं बाय चांस, है ना, ऐसा नहीं पाप कर सकते थे, लेकिन अगर हम पाप भी कर जाते हैं तो हमारे पास एक पर्याय है। 2 John chapter 2 verse 1. दूसरा यूहन्ना 2:1। My dear children, do not commit sin. But if you commit sin, you have an advocate in heaven. दूसरा यूहन्ना 2:1। दूसरे 2 का 1. First John 2:1. First John Yeah, 2:1. first, yeah. Okay. पहला यूहन्ना 2:1। Hmm. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। My dear children, don't commit sin. Even if you commit sin, you have an advocate to plead for you, to intercede for you. और जो है यहाँ पर लिखता है कि मेरे बालकों क्या करो, पाप न करो, लेकिन यदि पाप हो तो भी महायाजक हमारे पास एक ऐसा सहायक है जो हमारे लिए प्रभु के पास है। You have a high priest. आपके पास एक महायाजक है, Amen. He will justify you, वो आपको न्याय ठहराएगा, provided if you ask forgiveness. लेकिन ये कब आप क्षमा मांगोगे तब। That is what God has given for us. और यही प्रभु ने हमें दिया है, That He is doing every day. जो हमें रोज करता है, Justification. न्याय ठहराना। That is another theological subject और एक सब्जेक्ट है थियोलॉजी में, that we will study later. बाद में सीखेंगे। But in Jesus is holy. लेकिन एक बात ध्यान रखो, यीशु पवित्र है, That is His attributes. ये उसका स्वभाव है। God is holy, Jesus is holy. परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र है, And और यीशु भी पवित्र है। He is eternal. वो अनंत काल का है, He came from eternity and He went back to eternity. वो अनंत काल से आया और अनंत काल में गया। God is eternal. परमेश्वर अनंत काली है And Jesus also is eternal. और यीशु मसीह भी अनंत काली है। Now we are making comparative study, right? हम Okay. सिर्फ जो है तुलना कर रहे हैं। Whatever attributes
we find in Yahweh God, the Almighty God, the same attributes are in Jesus Christ. और जो भी हम परमेश्वर में देखते हैं वही स्वभाव हम यीशु में भी देखते हैं। He is eternal. वो अनंतकालीन है। Colossians 1:17. कोलोसियों की पत्री 1:17, कोलोसियों की पत्री 1:17। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। Oh yes. And he is before all things. वो सब वस्तुओं में प्रथम है And in him all things consist. और उसी में सभी बातें स्थिर होती हैं। Before all things were made or formed or created, he was there. और सारे चीज बनने से पहले, सृष्टि होने से पहले ही वो है। And now in him, in Jesus Christ, everything consists. और अभी क्या है, यीशु मसीह में सारी बातें स्थिर है। If he is not God, then who he is? अगर वो परमेश्वर नहीं तो फिर कौन है वो? यीशु में सारी बातें स्थिर है, तो यदि वो परमेश्वर नहीं तो फिर कौन है वो? Everything consists in him. सब कुछ उसी में है। The heaven and earth and another world, the earth underneath, the bottomless pit and everything he created. और जो भी दिखता है, आसमान, स्वर्ग, धरती और जो है पाताल और जो है अतः कुंड, ये सब उसने सृष्टि किया हुआ उसका है। Everything consists in him means he holds everything together. और सब कुछ उसमें स्थिर है, मतलब वो उसने पकड़ रखा है सबको। When he commands, things happen like that. जब वो आज्ञा देगा तो चीजें होगी। When he commanded, the hurricane, the whirlwind and tufan stopped. और जब उसने आज्ञा दिया तो आंधी तूफान भी थम। And when he spoke, they will flood away. और जब उसने बोला तो शैतान दुम दबा के भागा। And when he spoke, the water divided into two. A part went up and the remaining part left behind on the earth. और जो है जब उसने बोला तो समुद्र डूबागा, दो भाग में हो गया और दोनों साइड में दीवार की जैसे खड़ा हो गया और सूखी जमीन आ गई। And when he spoke, all animals and all living beings came into existence. और जब उसने बोला तो सारे प्राणियां सृष्टि हुई। And he is the one who calls each and every stellar stars by name. और वही एक ऐसा परमेश्वर है जो हर एक तारों का नाम से बुलाता है। And he holds the waters of the ocean in his palm. और वो सारे जगत के पानी को, चाहे समुद्र हो, महासागर हो, नदियां हो, सब कुछ अपने हथेली में रखा है। And he weighs the hills in a balance. और वो जो है सारे पर्वतों को जो है एक तराजू में तोलता है। What a great God he is. इतना महान परमेश्वर है। This is what the Holy Spirit says. Everything consists in him. और ये पवित्र आत्मा कहता है कि सब कुछ उसी में स्थिर है। He is the creator. वही सृष्टि करता है। So Jesus is God. इसीलिए यीशु ही परमेश्वर है। He is the wonderful God. वही अद्भुत परमेश्वर है। He is the almighty वो God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर He है। is the Emmanuel God. वो इमानुएल परमेश्वर He है। is omnipresent God. वो जो है सर्वव्यापी है। He is everywhere. वो हर जगह है। It doesn't mean he is in like some other mythological teaching. He is in every material things. और ऐसा नहीं कि जैसे सिखाया जाता है कि हर वस्तुओं में वो रहता है। No, he is everywhere. हर जगह पर है। He is omniscient वो जो है सर्वज्ञानी है and he is omnipotent. और वो जो है सर्व समर्थ है। These are the another attributes of Jesus ये Christ. यीशु मसीह का और एक स्वभाव है। God is omnipresent. परमेश्वर सब जगह मौजूद है। Jesus is omnipresent. यीशु भी सर्वव्यापी है। God is omniscient. और परमेश्वर सर्वज्ञानी है। Jesus is omniscient. यीशु भी सर्वज्ञानी है। God is omnipotent और परमेश्वर सर्व समर्थ है and Jesus is omnipotent. और यीशु भी सर्व समर्थ है। In all these attributes, when we compare, Jesus and Father are same. ये सारी बातों को जब हम देखते हैं हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर और यीशु एक ही है। He is worthy for worship.
वो आराधना के योग्य है। He is the only one worthy for worship. वो एकमात्र है जिसका आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। After the resurrection, 10 disciples believed in the resurrection. और जो है यीशु मसीह जी उठने के बाद 10 शिष्यों ने विश्वास किया कि वो जी उठा, But Peter did not believe. लेकिन Thomas did not believe. लेकिन थोमा ने विश्वास नहीं किया। So very personally, Jesus appeared to him. तो व्यक्तिगत रूप में थोमा को प्रकट हुआ। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Thomas, थोमा, stretch out your hands अपने हाथ आगे बढ़ा and put your fingers into the deep wound. और मेरे घावों को तू छू कर दे। Then Thomas told, my Lord and my God. और तब थोमा ने क्या कहा? हे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। And he worshipped. और उसकी आराधना करी। My Lord and my God. मेरा प्रभु परमेश्वर। The one who lived with Jesus for 3.5 years had little doubt about the resurrection, but he confessed and again told that Jesus is his God. जो 3.5 वर्ष यीशु के साथ रहा, साथ साथ चलता रहा, उसको थोड़ा सा शंका हुई कि यीशु के पुनरुत्थान पे, लेकिन जब उसने देखा तो उसने जो है दंडवत किया, उसको कहा हे प्रभु परमेश्वर करके उसकी आराधना की। Only a person who has conviction can say that the Lord is God. और जिसको जो व्यक्ति कायल होता है वही कह सकता है कि यीशु प्रभु है। And only a person who confesses sincerely from the bottom of the heart can worship God. और जो अपने तहे दिल से जो ये बातों को अंगीकार करता है वही परमेश्वर की आराधना कर सकता है। Our worship should come from within, हमारे आराधना अंदर से आना चाहिए, not from mouth. खाली मुंह का आराधना नहीं। God accepts the worship that emanates, that comes from within. और परमेश्वर उस आराधना को स्वीकार करता है जो हमारे हृदय के अंदर से निकलता है। There are many people worshiping God. बहुत सारे लोग हैं आराधना करने वाले, That's not wrong, गलत नहीं है, but God accepts the true sincere worship that truly comes from sincere hearts. लेकिन परमेश्वर उसी को ग्रहण करता है जो सच्चे दिल से वो आराधना करते हैं। Even Stephen, at the last moment, when people were stoning at him, worshiped the Lord. और स्टेफानुस उस आखिरी क्षणों में जब उसको लोग पथरवाह कर रहे थे, उस समय में भी परमेश्वर की आराधना। He had the vision of Jesus वो यीशु मसीह का दर्शन देखा and he recognized the deity of Jesus और यीशु मसीह के दैविकता को उसने देखा and he worshipped God. और उसने उसकी आराधना की। Jesus is worthy for worship. यीशु मसीह आराधना का योग्य है। Even the angels in heaven have been commanded to worship the Lord. और जो है स्वर्ग के स्वर्गदूतों को भी आज्ञा दिया गया है कि वो आराधना करें। Please read Hebrew 1:6. इब्रानियों के पत्र 1:6 पढ़ेंगे। इब्रानियों 1:6। और जब पहिलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। Yes. Let all the angels of God worship him. कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। When he again brings the firstborn into the world, he says, God says, let all the angels of God worship him. और जब पायलटों को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। The angels are spirit beings. जो स्वर्गदूत है वो आत्मिक हैं, मतलब आत्मा है। Spirit beings, they are in heaven. वो आत्मा रूपी है और वो स्वर्ग में है। God created them to worship God. परमेश्वर ने स्वर्गदूत को इसलिए बनाया ताकि वो आराधना करें। So our Jesus is worthy for worship. तो हमारा यीशु जो है आराधना के योग्य है। He is the great I am. वो महान
मैं जो हूँ सो हूँ है। He is the Lord of glory. वो महिमा का प्रभु है, He is the good shepherd. वो अच्छा चरवा। Lord is my shepherd. और भजन संहिता 23 कहता है यहोवा मेरा चरवा है, I shall not any want. मुझे कोई गति न होगी। The Lord is my shepherd. और यहोवा मेरा चरवा है, Yahweh is my shepherd. यावे परमेश्वर मेरा चरवा है। Right? सही है? Who said it? किसने बोला? David. दाऊद ने कहा। David told, the Lord is my shepherd. दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवा है। But what did Jesus say? लेकिन यीशु ने क्या कहा? I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवा हूँ। Right? So the shepherd in the Old Testament is a shepherd in the New Testament. तो वो चरवा जो पुराने नियम में था वही चरवा इधर नया नियम में। It's not two different shepherds, अलग अलग चरवा नहीं है, only one shepherd. एक ही चरवा। The shepherd who came for the children of Israel. वो चरवा जो इजराइल लोगों के लिए इस धरती पर आया, The shepherd who came for the Gentiles. जो अन्य जाति के लिए जो चरवा आया, And the shepherd came for all people. और वो चरवा जो सभी लोगों के लिए आया, And he is the one who told all authority is given to me. Therefore you go into all the world and preach the gospel. और वही चरवा ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ और सारे जातियों को चेले बनाओ। The Lord of glory became the good shepherd. वो महिमा का प्रभु जो है वो अच्छा चरवा बना। Many shepherds are there, बहुत सारे चरवा हैं, but there is only one good shepherd. लेकिन एकमात्र अच्छा चरवा है। And Jesus is the one who told, I am the good shepherd. और यीशु मात्र वो व्यक्ति है जिसने कहा मैं अच्छा चरवा हूँ। And he is not only good shepherd, the Bible says he is great shepherd. और वो मात्र अच्छा चरवा नहीं, लेकिन वो महान चरवा भी है। And also he is the chief shepherd. और वो मुख्य चरवा भी है। 3 titles are given for Jesus. यीशु के लिए 3 जो है ओहदे दिए गए, Good shepherd, अच्छा चरवा, great shepherd, महान चरवा and chief shepherd. और मुख्य चरवा। And he is our shepherd. और वही हमारा चरवा है। He is the rock of ages. वो जो है उस जो है अनंत काल का वो चट्टान है। Let us read Deuteronomy 32:4. व्यवस्था विवरण 32:4। व्यवस्था विवरण 32:4। 32:4। Yeah. वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। He is the rock. His work is perfect. For all his ways are justice. A God of truth and without injustice, righteous and upright is he. यहाँ पर लिखा वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। This Deuteronomy 32 is the song of Moses. और ये जो व्यवस्था विवरण 32 है, ये मूसा का गीत है। And in the song Moses says, Yahweh is the rock. और इस गीत में मूसा कहता है यावे ही वो चट्टान है। The rock. यावे वो चट्टान है, The rock that is split. वो चट्टान जो तोड़ा गया। When the Israelites were hungry and thirsty and they had no water, the Yahweh God told to Moses, command to the rock. और जब इजराइल लोग भूखे थे, प्यासे थे, पानी नहीं था, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उस चट्टान से बोल। But what did Moses do? लेकिन मूसा ने क्या किया? He struck the rock. उस चट्टान को मारा। It was a wrong action the side of Moses. मूसा के तरीके से वो एक गलत कार्य था। And because of that, he could not enter into the Canaan. और उस गलती के वजह से वो कानान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। But prior to that, God spoke to him. लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कहा, God spoke to Moses, come on, command to the, strike the rock, and he struck. उससे पहले एक बार परमेश्वर ने कहा था
कि चट्टान को मार और उसमें से पानी निकला। And the rock was split and gave water to the children of Israel. और वो चट्टान जो है पानी देने लगा उसमें से फटकर। How many people drank? कितने लोग पिए? 20 lakh? Jada. Yes. 40 lakh. आसपास, right? 40 Yeah. लाख के आसपास Near- लोग पानी पिए। कितना पानी होगा? The Surya Dam, hundreds of Surya Dam comes, it would haven't been sufficient for quenching the thirst of children of Israel. इजराइल के प्यास को मिटाने के लिए सूर्य डैम 10 भी आएगा तो भी पूरा कम पड़ेगा। But God gave them sufficient water. लेकिन परमेश्वर ने भरपूरी से पानी दिया। And not only to the children of Israel, to the animals also. और सिर्फ जो है वो लोगों को ही नहीं लेकिन उनके जानवरों को भी दिया। How many camels, how many donkeys, how many horses they had along with them. कितना गधे, कितना ऊंट, कितना घोड़े, ये सब थे उनके साथ, वो सबको दिया पानी। God gave everything sufficiently. सब कुछ भरपूराई से दिया प्रभु ने। When God gives something, He gives abundantly. लेकिन जब प्रभु कुछ देता है तो बहुतायत से देता है। You believe? क्या आप विश्वास करते हो? When man gives, he gives frugally. और लेकिन जब मनुष्य देता है तो कंजूसाई से देता है, Little by little. थोड़ा थोड़ा, Not sufficient. पूरा नहीं पड़ने देता। Now, how many people are working in offices? कितने लोग ऑफिस में काम करते You need more salary. हैं, पगार ज्यादा चाहिए You are asking your boss or your sponsor to give more salary, but they are not giving. और आप अपने बॉस को या अपने स्पॉन्सर को बोलते हैं थोड़ा पगार बढ़ाओ, लेकिन कोई बढ़ाता नहीं, They don't give. देते नहीं। That's the nature of people. ये लोगों का स्वभाव है। But when we ask unto God, He gives liberally. लेकिन जब हम परमेश्वर से मांगते हैं वो बहुतायत से देता है More than sufficient He gives. और जो है जो जरूरत है उससे भी अधिक देता है। So don't ask to people, ask unto God. इसीलिए लोगों से मत मांगो, परमेश्वर से मांगो। He is a good shepherd. वही अच्छा चरवा है, He is the rock. वही चट्टान है, He is the living rock. वो जीवित चट्टान है। And when He gives, when He supplies, that supply will never cease. और वो जब देता है, वो जब पूर्ण करता है तो पूर्णता में देता है। You and your generation after generation after generation will enjoy the blessings of God. आप आपके पीढ़ी के पीढ़ी भी उस आशीषों को लेकर चलेंगे, Because He is the living rock. क्योंकि वो जीवित चट्टान है। Is Jesus the living rock? क्या यीशु मसीह चट्टान है? 1 Corinthians पहला कोरिन्थी chapter 10 verse 4. 10:4, पहला कोरिन्थी 10:4। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। That rock was Christ. यहाँ पर लिखा है वो चट्टान मसीह था। All drank the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह है। So all through 40 years, this rock was following the Israelites. और 40 साल तक ये चट्टान इस्राएलियों के साथ साथ रहा, He was in front, at the back, and all around protecting them. और आगे पीछे साइड में सब जगह से उसको सुरक्षा दे रहा था। When God is with us, there is no need to fear anyone. जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। He is a rock. वो चट्टान को He is the citadel, great wall. वही वो जो है वो पहरा देने वाला वो जो है शहर बना है। And the same rock is with the New Testament Christians. और वही चट्टान नए नियम के विश्वासियों के साथ। But many people did not believe in that rock and they perish in the desert. और जो है बहुत लोगों ने उस चट्टान पर विश्वास नहीं किया और मरुभूमि में अपने प्राण त्याग दिए। But those who trusted in the rock were blessed. लेकिन जिसने उस चट्टान पे भरोसा किया वो आशीषित हुआ। So he is a good shepherd. वो एक अच्छा चरवा है, He is the living rock. वो जीवित चट्टान है, And he is the judge of all people.
वो सभी का न्याय है। We know God is the judge. आप जानते हैं ये परमेश्वर न्यायाधीश है। Genesis 18:25. उत्पत्ति 18:25। उत्पत्ति 18:25। उत्पत्ति 18:25। Yeah. इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की ही एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर है। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? Shall not the judge of all the earth do right? क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? So judgment is the one of the characters of God. और न्याय करना ये परमेश्वर का एक गुण है, एक जो है स्वभाव है। Often we know God is love हमेशा हम जानते हैं परमेश्वर प्रेम है, and God forgives और परमेश्वर क्षमा करता है, and He gives abundantly. वो बहुतायत से देता है। All these are attributes of God. ये सब परमेश्वर के गुण हैं। One more attribute there. और एक गुण है, He judges all. वो सबका न्याय करता है। No one will escape from the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति से कोई बच नहीं। God will judge according to His righteousness. परमेश्वर अपनी धार्मिकता के अनुसार हमारा न्याय करेगा, And He will judge according to His holiness. अपने पवित्रता के अनुसार वो हमारा न्याय करेगा। In God there is no partiality. परमेश्वर में कोई भेदभाव नहीं। He loves all people. वो सभी से प्रेम करता है, He judges all people. सभी का न्याय करता है। But to believers there is no judgment. लेकिन जो विश्वासी है उनके ऊपर जो है No. दंड का आज्ञा नहीं, There is no condemnation. दंड का आज्ञा नहीं। Yeah. There is no condemnation for believers. विश्वासियों के लिए दंड की आज्ञा नहीं, It's written, right? लिखा हुआ है। Romans 8:1. रोमियो की पत्री 8:1। Therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. तो जो मसीह में है उनके ऊपर दोष की भावना नहीं है। We are happy because we don't have condemnation. Our condemnation is borne by Jesus. और हम खुश हैं, हमारे पर दोष नहीं है, क्योंकि हमारे दोष को प्रभु यीशु ने ले लिया। But Bible nowhere says we will never have judgment. लेकिन बाइबल कहीं पर भी नहीं लिखा है कि विश्वासियों का न्याय नहीं होगा, We will be judged. हमारा न्याय होगा। Every believer will have to come in front of the judgment seat of Christ. और हर विश्वासी को परमेश्वर के उस न्यायासन के सामने आना पड़ेगा। All believers. सारे विश्वासी। For what? काय के लिए? To receive our reward. हमारा प्रतिफल पाएंगे। But one thing, we will receive reward according to our works. लेकिन प्रतिफल कैसा मिलेगा? हमारे कामों के अनुसार। If you do not do anything heavy, such as gold or diamond or silver, that do not perish in the fire of God, in the refinery of God, then we will get reward. लेकिन हमारा काम मजबूत होना चाहिए, चाहे सोना हो, चांदी हो, है ना, हीरे जवाहरात। तो ऐसे जो उस भट्टी में जाकर भी जो है खरा निकले, ऐसा रहेगा तो वो प्रतिफल मिलेगा। Or if you are building only hay and wood and many things that will burn in the fire of God, you will not get reward. लेकिन लकड़ी भूसा से अगर हम अपना काम बनाते हैं तो परमेश्वर के इसमें राख हो जाएंगे। Nowadays, many people have many things to show to the world. आज बहुत लोगों के पास बहुत कुछ रखे हैं बताने के लिए दुनिया को। It is like a bundle of hay. वो एक जो बड़ा जो भूसे का या फिर बड़े घास का, जो सूखे घास का एक कुंभा जैसे। You know, bullock carts are carrying hay, bundles of hay, trucks are carrying bundles of hay, but one matchbox is enough to finish it. और बहुत सारे हम देखते हैं ट्रकों में, और जो है गांव में देखें तो बैलगाड़ियों में बड़े बड़े बंडल लेके जाते हैं घास के, सूखे घास के, इतने बड़े बड़े बंडल रहते हैं, लेकिन एक माचिस का तीर काफी। Work is finished. सारा काम खत्म, Show is finished. सारा शोषा खत्म, No reward. उसका कोई प्रतिफल नहीं। That's what Jesus says. Whatever we do, it should be like diamond, gold and silver. Even if it is thrown into fire, it will come out as it is. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमारा जो काम है वो सोना और हीरे के समान होना है,
जो आग में गिरने के बाद और निखर आता है। So he is the judge of all. तो वो सभी का न्यायाधीश है। The book of the writer of Hebrews says he is the consuming fire. और इब्रानियों के लेखक क्यों कहता है कि वो जो है भस्म करने वाला आग है। Who? कौन? Jesus. यीशु मसीह। He is not only the lover of your soul, वो सिर्फ आपका आत्मा का प्यार करने वाला ही he नहीं, is a consuming fire. लेकिन वो भस्म करने वाला आग भी है। So everyone will have to go through the fire of judgment. और सभी लोगों को उस न्याय के आग से गुजरना पड़ेगा। So whatever we do for God, heavy, strong, with eternal value, that only will last. और जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए भारी और जो है बहुत ही मजबूत और जो है सही कड़क चीज होना है, जो भस्म न हो, वही प्रभु का प्रतिफल पाएंगे। John 5:22. यूहन्ना 5:22। यूहन्ना 5:22। यूहन्ना का 5:22, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। Who judges? यहाँ पर कौन न्याय करता है? For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का अधिकार किसको दिया है? So, what did we read in the book of Genesis? उत्पत्ति में क्या पढ़ा हमने? God is the judge of all. परमेश्वर सबका न्याय है। And the New Testament says Jesus is the judge, और नया नियम कहता है यीशु ही वो न्यायी है, no one else. और कोई नहीं। So, God and Jesus are one. इसीलिए परमेश्वर और यीशु एक ही है। He is the great God and Savior, वही महान परमेश्वर और उद्धार करता है, Savior of the whole world. और पूरा दुनिया का उद्धार करता है। Only God can save. सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है। He is a great God. वो महान परमेश्वर है। That is Isaiah 43:11. यशायाह 43 का 11 देखेंगे। यशायाह 43 का 11, 43:11। 43:11, Yeah. मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। Yes. I am the Lord, and besides me there is no Savior. यहाँ पर लिखा है यशायाह, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। And one more verse from the Old Testament, chapter Isaiah 44:6. 44 का 6। 44:6, Yeah. यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। Yes, I am the first, I am the last. Besides me there is no other God. यहाँ पर कहता है मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। So Jehovah is the great Savior God. और यहोवा ही वो महान उद्धार करता है। Is it Jesus? क्या वो यीशु है? Let us say Titus 2:13. तीतुस का 2:13, तीतुस 2:13, टाइटस तीतुस 2:13। तीतुस 2:13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। You have to read from 11 onwards. It's a big sentence. जरा 11 से पढ़ेंगे। 11 से, Yeah. क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। आमीन। Who is Jesus? अब यीशु कौन है? Verse 13, you read it out. 13 वचन को जरा जोर से पढ़ो।
और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह। So who is Jesus Christ? तो यीशु मसीह कौन है? Great God and Savior. वही वो महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता। हालेलुया। In the Old Testament we are read, I am God, besides me there is no one, I am Alpha and Omega, Yahweh God spoke. और पुराने नियम हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर बोल रहा है कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। But Titus says that God is Jesus Christ. और तीतुस कहता है वही परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। He is great God. वो महान परमेश्वर है। And not only great God, He is our Savior. वो महान परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है। Very clearly says बहुत साफ साफ लिखा है Jesus Christ is God. कि यीशु मसीह परमेश्वर है। If someone asks you where it is written that Jesus is God, you just show Titus chapter 2 verse 13. और अगर कोई पूछे आपसे कि यीशु मसीह परमेश्वर है करके कहाँ लिखा है, उसको बोलो तीतुस पर क्या है। He is a great God. वो एक महान परमेश्वर है। And Jesus is the only one who claimed, I am the light. और यीशु मसीह वो मात्र परमेश्वर व्यक्ति है जिसने कहा मैं ही ज्योति हूँ। Psalmist in chapter 27 verse 1 told, God is my light. और 27:1 में भजन लिखने वाला कहता है कि मेरा यहोवा मेरा ज्योति है। God is my light. यहोवा मेरा ज्योति है। Where there is light, there is no darkness. जहाँ उजाला है वहाँ अंधकार नहीं। Vice versa, where there is no light, there is darkness. और उसी के समान देखे जाए तो जहाँ पर उजाला नहीं वहाँ पर क्या है? अंधेरा है। So God is light. तो परमेश्वर ज्योति है। That light is in you. वो ज्योति तुम में है। So when that light is in us, we have to illuminate the light. और जब वो ज्योति हमारे अंदर है उसको हमको प्रज्वलित करना है। Our duty is to reflect it. और हमारा जो काम है उसे उस ज्योति को प्रज्वलित करना। The light is going on coming. उजाला तो आते ही जा रहा है, ज्योति आ रहा है। And when the light comes, it should reflect. और जब ज्योति आती है तो उसको क्या होना है? उसको सामने उसको प्रज्वलित करना है। So you are the representative of Christ here. आप यीशु मसीह के प्रतिनिधित्व हैं। Your mouth is for Jesus. आपका जो मुंह है ये यीशु के लिए है। Your whole body is for honoring Jesus. आपका पूरा शरीर जो है परमेश्वर का जो है उसको सम्मान करने के And लिए। our duty is to reflect the light of Jesus. और हमारा कार्य ये है कि हम परमेश्वर के उस ज्योति को प्रकट करें। If light doesn't illuminate, then that is not light. अगर वो ज्योति प्रकाश नहीं देती है या प्रज्वलित नहीं होती है तो वो लाइट ही नहीं है। So we have to live as light for the Lord. तो हमें परमेश्वर के लिए एक ज्योति बनकर इस दुनिया में रहना, Like a candle. एक जो है मोमबत्ती के समान। Candle burns and burns and burns and finally it perishes. मोमबत्ती क्या होता है? जलते रहता है, जलते रहता है, जलते रहता है और आखिर में खत्म हो जाता है। But it gives light. लेकिन वो जब तक जलते रहता है तब क्या रोशनी देते रहता है। As long as it exists, even till the last moment, it gives light. वो उसका आखिरी क्षण तक, वो आखिरी जो ड्रॉप जो बचा रहता है उस मोम का, तब तक वो उजाला देते रहता है, रोशनी देता है। We should be like that. हमें भी ऐसे रहना है। You have to burn for Jesus. हम यीशु के लिए जलना है, You have to live for Jesus. हमें यीशु के लिए जीना है। Jesus is the light. यीशु मसीह ही उजाला है। If He is the light and we are received the light from Him, we should not live in darkness. अगर वो ज्योति है और हम उसके लिए जी रहे हैं तो वो ज्योति हमारे अंदर होना है। Jesus told, I am the light. यीशु ने कहा मैं ज्योति हूँ। He is the only one who told, I am the light. सिर्फ वो मात्र एक व्यक्ति है जिसने कहा मैं ज्योति हूँ। Anyone can say, I am light, कोई बोल सकता है कि मैं भी उजाला हूँ, but no one can say, I am the light. लेकिन मैं ही ज्योति हूँ करके कोई नहीं बोल सकता। Jesus told, I am the light. यीशु ने कहा मैं ही ज्योति हूँ। What is that? The light? मैं ही मतलब क्या है? The light of the Father. पिता का ज्योति, The light of eternity. अनंत काल की ज्योति, The illuminating light. वो जो प्रज्वलित होने वाली ज्योति, The controlling light. वो जो है उसको
बांध के रखने वाला ज्योति, the guiding light. वो अगवा करने वाला ज्योति, Yes, that light is what we need. वही ज्योति हमें चाहिए। Jesus is the light. यीशु मसीह ज्योति है, He is the light of India. वो भारत का ज्योति है। Amen. Do you believe? Yes, yes. विश्वास करते हैं? He is the only light of India. और जो है वो एकमात्र ज्योति है। We should bear witness of this light. हमें इस ज्योति का गवाह बनकर रहना। But who will go and show this light to others? लेकिन कौन जाएगा ये ज्योति दिखाने के लिए? हमें We have to go. हमें जाना है। We have to bear witness for Jesus. हम यीशु के लिए गवाह ठहरना है। That is another attribute for Jesus. वो यीशु का और एक गुण है। Then he told, I am Alpha and Omega. फिर उसने कहा मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। Even the book of Isaiah says that he is the Alpha and Omega. और यशायाह नबी के किताब में भी लिखा है कि वही अल्फा और वही ओमेगा है। Jesus repeated in the last book through John in the Isle of Patmos. आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में यीशु ने इसी बात को बताया। Revelation chapter 22, प्रकाशित वाक्य 22 verse 12. 22 का 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। 13. मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। All the attributes in one verse is written here. सारे गुणों को एक ही वचन में लिखा है। Verse 13, I am the Alpha and the Omega. मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। I am the beginning and the end. मैं ही पहला और पिछला हूँ। I am the first and the last. हाँ मैं आदि और अंत हूँ। What a great God is Jesus. यीशु मसीह कितना महान है। So all Old Testament titles that are given for Yahweh God is applicable for Jesus Christ in the New Testament. और जो भी नाम या जो भी औहदा परमेश्वर पिता के लिए पुराने नियम में दिए गए हैं वही यीशु मसीह के लिए नया नियम में दिया है। And it is this Yahweh's way that John the Baptist prepared. और इस यहोवा परमेश्वर का मार्ग ही यूहन्ना बपतिस्मा वाला तैयार किया। Let us read Isaiah 43. यशायाह 43 पढ़ेंगे। 43 Chapter 40, verse 3. 40 यशायाह 40 का 3। यशायाह 40 का 3। 40 का 3। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। आमीन। Prepare the way of the Lord. और यहाँ पर लिखा है कि यहोवा के लिए मार्ग तैयार करो, Jehovah was going to come. क्योंकि यहोवा आने वाला था। Jehovah wanted to manifest himself on the earth, यहोवा खुद इस धरती पर मानव रूप लेने वाला, but he could not come. लेकिन वो आ नहीं पाया। He sent his son उसने अपने बेटे को भेजा, because it was not possible for him to come on this wicked earth. क्योंकि उसको इस दुष्ट दुनिया में आ नहीं सकता था। He had chosen his own son. लेकिन उसने अपने आप का अपना बेटे को भेजा। In other words, from within whom he sent his son on behalf of whom as our substitute. और उसके अंदर से उसने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए एवज बनने के लिए। So before he came, he sent a foreigner. और वो आने से पहले एक आगे एक व्यक्ति को भेजकर मार्ग तैयार करने। Isaiah said, prepare the voice of the one crying in the wilderness. और मैंने एक आवाज सुनी जंगल में, And the foreigner was John the Baptist. और वो आगे मार्ग तैयार करने वाला कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा वाला। Prepare the way of the Lord. प्रभु के लिए मार्ग तैयार और उसकी सड़कें सीधी करो। Here is प्रभु का मार्ग तैयार करो. Prepare the way of the Lord. यहाँ पर लिखा है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। In the Old Testament, the book of Isaiah, it was prepare way for Yahweh. और पुराने नियम में क्या लिखा था? यहोवा के लिए मार्ग तैयार। So Yahweh became Lord here in the book of Matthew. मत्ती में वही यहोवा परमेश्वर प्रभु बनकर आया। So John the Baptist prepared the way for Yahweh. That means
he prepared the way of the Lord Jesus. और यूहन्ना बपतिस्मा वाला मार्ग तैयार किया यहोवा के लिए, मतलब यीशु के लिए मार्ग तैयार किया। So the words applied for Yahweh is applied for Jesus Christ. तो जो यहोवा के लिए जो शब्द बोले गए वही शब्द यीशु के लिए बोले गए। He is the image of the Lord Almighty. वो सर्वशक्तिमान प्रभु का जो है स्वरूप है, That we can see in the book of Colossians and Philippians and the book of Hebrew. कुलोसियों की पुस्तक में, फिलिपियों की पत्री में, इब्रानियों की पुस्तक में हम ये देख सकते हैं। And he is the one Lord Yahweh put foundation for the world. और वही यावे परमेश्वर प्रभु जो है उसने इस धरती का नींव डाली। Let us read Psalms 102. भजन संहिता 102 पढ़ेंगे। भजन संहिता 102 25-27. 25 Yeah, 25 से 27। yes, right. आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। Yes, 25. Of all you laid the foundation of the earth. और जो है यहाँ पर लिखा है कि तूने जो है पृथ्वी की नींव डाली। Yahweh God, the Lord Almighty put foundation of the earth. यावे परमेश्वर ने जो है पृथ्वी की नींव डाली। But the New Testament says Jesus put foundation. लेकिन नया नियम कहता है कि यीशु ने नींव डाली। Hebrew chapter 1, इब्रानी 1 10, 11, 12. 1 का 10, 11, 12। 1 का 10, 11, 12। Yes. और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। Yes. To whom did it say? ये किसके लिए कहा गया? Read verse 8. 8वां वचन पढ़े। 8वां। Yeah. परंतु पुत्र के विषय में कहता है, Yes, but to the Son he says, परंतु पुत्र से कहता है, yeah. हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। Hey Parameshwar, oh, your throne of God is forever and ever. पुत्र को कहता है कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। So who is Jesus? तो यीशु कौन है? God. And he has an eternal throne. और उसका एक अनंत काल का सिंहासन है। Since he is king, he has a scepter in his hand. और क्योंकि वो राजा है तो उसके लिए हाथ में एक राजदंड है, And he has a scepter of righteousness. और धार्मिकता का राजदंड है। And that scepter he is going to use in his eternal kingdom. वो उसके अनंत काल के राज्य में उस राजदंड का इस्तेमाल करेगा। That eternal kingdom is the millennium kingdom. वो राज्य जो है वो 1000 वर्ष का राज्य। So Jesus is God forever. यीशु मसीह हमेशा के लिए परमेश्वर है। He put foundation of the earth. उसने जगत की नींव डाली। Yahweh put the foundation, यावे ने नींव डाली, but the writer of Hebrew says it is Jesus. लेकिन इब्रानी के लेखक क्या कहता है? यीशु मसीह। यीशु ने। And verse 8, 8वां वचन। now read it again, read it again. ओके। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। Yes, he has a throne. तो यहाँ पर देखते हैं कि पुत्र का भी सिंहासन है, He has a throne. उसका सिंहासन है। But the Old Testament says God has a throne. पुराने नियम कहते हैं यहोवा का एक सिंहासन है। Psalms 45. भजन 45। You keep a finger on in your Bible so that you can again refer it. Psalms 45, 6 and 7. भजन संहिता 45 का 6 और 7। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। Same. Yeah, enough.
Your throne of God is forever and ever. A scepter of righteousness is scepter of your kingdom. यहाँ पर भी वही लिखा है कि तेरा सिंहासन युगानुयुग तक रहेगा और तेरे हाथ में क्या है? न्याय का राजदंड है। But in the New Testament, the book of Hebrews says, "Oh God, your throne is forever." लेकिन नया नियम में कहता है कि हे प्रभु तेरा जो सिंहासन है वो युगानुयुग तक है। So he has put foundation of the earth. उसने जो है नींव डाली, He has a throne. उसका सिंहासन है। There is only one throne in heaven. स्वर्ग में एक ही सिंहासन है, God, the Almighty, sits on it. सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसमें बैठता है। And then where is the throne for Jesus? फिर यीशु के लिए कहाँ? स्वर्ग। Where is the throne for the Holy Spirit? वो खुद ही परमेश्वर है, तो एक ही सिंहासन है। Because they are God, they have only one throne. क्योंकि वो परमेश्वर एक ही है, इसीलिए सिंहासन भी एक है। Three persons or three offices of God, so that he might show himself who he is to the world and the universe, but the God is saying. और तीन व्यक्तित्व, तीन अलग अलग कार्यालय, लेकिन वो लोगों को बताने के लिए, अपने स्वभाव को बताने के लिए वो अलग अलग रूप में है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are one. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और आत्मा परमेश्वर एक ही है। They are three in persons, but one in essence. व्यक्तित्व में तीन है, लेकिन वैसे एक है। In essence, they are one. और जो है स्वभाव में एक है। You may ask, how is it possible? ऐसा कैसे होगा? Humanly speaking, we cannot understand. और अगर हम मनुष्य के सोच से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, But we have to follow what the Bible teaches. लेकिन बाइबल जो सिखाता है उसको हमें पढ़ना है। So he lives forever. वो हमेशा के लिए जीवित है। Shall we continue? Okay. So we have to taste and see that the Lord is good. हमें चक्कर देखना है कि परमेश्वर भला है। In Psalm 34:8 says, taste and see that the Lord is good. भजन संहिता 34:7 में कहता है कि चक्कर देखो कि परमेश्वर भला है। Who is that Parameshwar? Who is that God? वो परमेश्वर कौन है? Peter says, taste and see that Jesus is good. पतरस कहता है कि चक्कर देखो यीशु भला है। 1 Peter 2:3. पहला पतरस 2:3। पहला पतरस 2:3। पहला पत्र 2 का 3। Yeah. क्योंकि तूने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। Yes. We have to taste Prabhu ki kripa. Taste the grace of God. हमें परमेश्वर की कृपा को या परमेश्वर की दया को चख कर देखना है। Okay? And he is the God who appeared to Isaiah the prophet. और वही परमेश्वर है जो यशायाह नबी को प्रकट हुआ। We know the great vision of Isaiah. यशायाह का बहु महान दर्शन आपको पता है। In Isaiah chapter 1, 2, 3, 4, 5, Isaiah was condemning the sin of Israel. और यशायाह नबी की किताब 1, 2, 3, 4 में हम देखते हैं, 5 also. 5 में, 1 से 5 में अगर हम देखें अध्याय, तो वहां पर यशायाह जो है इस्राएलियों के पाप को जो है उनको बता रहा है। And he was so harsh, he condemned them. और इतना मजबूती से उनको दोष लगा रहा था। But God appeared to Isaiah in chapter 6. लेकिन 6ठा अध्याय में यशायाह को परमेश्वर ने दर्शन दिया। And when he saw God, he came to himself. और जब उसने परमेश्वर को देखा, वो अपने आपे में आया। He realized his sin. उसने उसका पाप को समझा। Then he told, "Oh wretched that I am. और उसने कहा, कितना अभागा हूं मैं, I saw the glory of God." मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा। Isaiah saw the Almighty God Yahweh. यशायाह ने सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर को देखा। Was it the Lord Jesus? क्या यीशु मसीह था वो? Yes. We have to study from the Bible, right? तो हमें बाइबल Yes. से देखना है। Let us read John chapter 12. यूहन्ना 12 देखेंगे। John chapter 12, यूहन्ना 12 अध्याय 37 to 41. 37 से 41।
यह 12:37-41। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे सुसमाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। See, verse 41 41वां वचन very clearly says, these things Isaiah said when he saw his glory and spoke of him. यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उस विषय में बताया। When we read from 35 onwards, it speaks about Jesus. और 35वां वचन से अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है। And after speaking about Jesus and his vision, again John repeated that Isaiah saw his glory, Jesus' glory. और यहाँ पर सारी बातें बताने के बाद यीशु के बारे में यशायाह नबी की किताब में, यशायाह किताब में जो लिखा है वो दर्शन को बता रहा है कि उसने यीशु की महिमा को देखा। Verse 41, you read it again. 41 पढ़ना। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी। किसका महिमा? परमेश्वर की महिमा। यीशु की महिमा. So the vision Isaiah had seen was the vision of Jesus. और जो